Good morning, students. Today I am here with your question paper, Periodic Assessment 1, Subject English of Class 10th. Dear students, such type of paper you have solved in the previous classes. I think there is no surprising to know the reading section as well as literature, grammar and so on meanings. I know well that you can able to solve all the question. Dear students, see the first question. Read the sentences and answer the question. Dear students, first of all, you have to read this passage 2 or 3 times so that you can understand the meaning and sense of sentence. When you understand the passage well, then after you are going to attempt the question, that is based on MCQ. Dear children, total number of 12 and you have to attempt only 10 questions. So dear students, first you read the question that is based on your passage. If you understand the passage well, I hope you can able to solve the question very easily. So on the basis of your reading, answer any 10 of the following question. It means here are given 12 question and you have to solve only here are given 12 question. You have to solve only 10 question. Read the question number 1 and choose the which is the best option as you read the passage. 1, question number 2, then question number 3, 4, 5, 6, 7, then 8, then 9, 10, 11, 12. You have to attempt only 10 question. Be sure the answer of the question which you think that it is perfect. Put the pen on that particular question. Okay. As same as question number 2. Dear student, question number 2. Read the passage given below. As same process is here. You must read 2 or 3 times this particular question. Be careful that this passage based to the statistical record. Here are given a graph. First you read the 2 or 3 times that particular passages. Then after carefully watch the graph and understand what is in graph. On the basis of this graph, next you go to attempt the question. As same as here are given 12 questions and you have to solve only 10 questions out of 12 questions. See here, that is based to the statistical record. You have to read and understand the passage very well so that you can easily solve the question and get good marks. Okay. Now see here question number 3. Read extra given below carefully and answer the question that follow. This question based to your textbook. I landed and was not sorry to walk and answered from Old Dakota. You understand and read well. Here are given 5 questions on the basis of this particular question. Question number 1, 2, 3. Okay. So you have to solve this question that is on 6 marks. Here you are given 6 marks if you have attempted 3 questions. Okay. Now see here the first question is this, second is this, this is the third. You just put correction here. ये जो सेकेंड 2 बार लिखा हुआ है बेटा, इसको आप 3 कर लोगे. इसके बाद बेटा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बेस्ड टू ऑन योर पोएट्री. ये आपकी पोएट्री को बेस करता है, आपकी पोएम को बेस करता है. आपने इस पोएम को पढ़ा होगा. There has given my heart a change of mood and saved some part. After that I did, you know well
आप इस पोएम को आपने पढ़ा है, कई बार आपको पढ़ाया गया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत इजली कर लेंगे। हियर आर गिवन 5 क्वेश्चन दैट इज ऑन 1, 2, 3, 4 and 5. I hope there is no problem. Then after just come to see the question number 5, that is based on the grammar. It means you have to take care here. This passage based to the tense को बेस करता है बेटा, इसको आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और टेंस के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शन दिए गए, जैसे ए में दिया इज डूइंग, विल डू, डज डू, सेकेंड में गॉन, इस तरह से उस ऑप्शन को चूज करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये बेटा है नरेशन बेस पे है। आप नरेशन पढ़े ही हैं, 8th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी, 10th में भी। तो ये जो नरेशन बेटा है आपको देखना है, इसमें बेसिकली जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप के सेंटेंस इसमें एडजस्ट होंगे, ठीक है, किस टाइप के सेंटेंस इसमें एडजस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज आउट करोगे। ये डायरेक्ट पोजीशन दिया गया है, इसमें देखो दिया है जैकी इज हिज चिल्ड्रन कॉमिक्स फॉर एनवायरनमेंट। अब यहाँ देखो दिया है सा द गिवन, सी द अबव, हैड सीन एंड हैव बीन सीन। चूज एनी फर्स्ट एनी correct option to complete that particular line. Now see here question number 7. This question number questions based to determiners as well as many rules has been involved here. तो यहाँ भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, जैसे वाटर हैज़ ए मॉडरिंग आफ्टर अफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अब आपको हियर गिवन, डोमिनेटेड, हैविंग, डिमांड, जो भी चीज़ें हैं उसको आप करेंगे। दे कुड ईजली अफोर्ड टू से द बेस्ट होटल, ये भी आपका उसी पे पुलिस फाउंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप अटेंड कर लेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको यानी 4 क्वेश्चन अटेंड करना है। इसके बाद बेटा आते हैं राइटिंग सेक्शन, जिस पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन जो आपका है ये क्वेश्चन सही नहीं है। ये जो फिगर आपका दिख रहा है 8 में, ये फिगर क्वेश्चन नंबर 8 का नहीं है बेटा, ये फिगर क्वेश्चन नंबर 9 का है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है ये क्वेश्चन नंबर 8 का नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। 8 में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द पास्ट 7 days यू आर लेट वर्क ड्यू टू सम अनेबल इश्यूज एट होम, राइट ए लेटर टू द मैनेजर। मतलब दिस इज द टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को आपको डिस्क्राइब करना है, ये करिए। या तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिए, इस ग्राफ को आप बिल्कुल भूल जाएंगे। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कहाँ आपको आर लगाना है। ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप केयरफुली जज करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये ग्राफ जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 का है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मल लेटर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया, यू लिव इन ए रूम इन कॉलेज विच यू कैन शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स, हाउएवर there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to write a letter to the accommodation offices as same as both are the formal letter। अब बेटा हम आते फॉर्मल लेटर, और आपको बताया भी जा चुका है, हमने भी आपको वीडियो के द्वारा भी समझाया है कैसे उसको लिखते हैं। तो आप वो बिल्कुल फॉर्मेट को एडमिट करेंगे। मार्क डिवीज़न बताया मैंने, कैसे जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनका कैसे जो है हम मार्क डिवीज़न करते हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन टोल्ड टू यू एंड विद दैट विद द हेल्प ऑफ दोज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में जो ये ग्राफ दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो बार चार्ट है, ये जो बार चार्ट है यही वो आपका ऊपर वाला बार चार्ट है, यानी ये जो चार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दिया है द बार पार्ट चार्ट शोज द स्कोर ऑफ टीम ए, बी एंड सी कवर फ्रॉम डिफरेंट सीजन, राइट एंड देखिए दिया है राइट एंड एनालिटिकल पैरा ऑन द गिवन डाटा इन अबाउट 100 to 120 वर्ड। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन आपका 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये उस डाटा के लिए क्वेश्चन है जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 के बीच में यहाँ दिया गया। ये जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार चार्ट को आप देख करके एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इसके बाद और यहाँ और लिखा नहीं है, आप और बना लेंगे, यहाँ और नहीं लिखा गया है। ये देखिए दिया है
दूसरा क्वेश्चन यहीं शुरू करें। द टेबल इलिस्ट्रेट्स द प्रपोर्शन ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम। अब ये जो है ये द टेबल ये 9 का दूसरा क्वेश्चन है, जैसे 8 में 2 है ना, और करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा और हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद 120 100 to 120 100 के बाद ये क्वेश्चन नंबर और हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन होगा। और ये आप देखेंगे दिस टेबल द टेबल इलस्ट्रेट द प्रपोर्शन ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों के आधार पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत बी केयरफुल इन राइटिंग सेक्शन, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 में बार ग्राफ दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 9 का बार ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो 100 to 100 वर्ड यहाँ आप कंप्लीट हो रहा है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा द टेबल स्ट्रीट, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ और होना चाहिए था, उसको आप और बना करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आई होप देयर इज नो डाउट, इट इज़ क्लियर टू ऑल। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो आप जानते ही हो। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? Who read the letter? Can you say how 10 May is an autumn day? एंड आई थिंक जो भी चीज़ें हैं सारी आपको पढ़ाई गई हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप एनी अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। आंसर 11, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हियर इज द सेम, यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन आउट ऑफ जो भी आपका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट? डू यू एग्री विथ हिम? ये भी आपको पढ़ाया गया है। द साइट ऑफ फूड मैडेंट, ये भी आपको पढ़ाया गया है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड? आई थिंक इट इज़ क्लियर। एंड व्हाई डिड मंडेला थैंक द इंटरनेशनल? इसके बाद बेटा 12 क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड। ये आपका 12 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन के अनुसार 6 मार्क्स। तो डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लेव, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। हाउ डिड मंडेला संगर एंड लेंसो? इट मीन्स जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे आपको पढ़ाए जा चुके हैं, रिवीजन में भी लिया जा चुका है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे, वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए, सेंटेंस इजी वे में चूज होने चाहिए वर्ड। ठीक है, तो बेस्ट आंसर आप लिखेंगे तो आपको बेस्ट नंबर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, तो बी केयरफुल ऑफ योर राइटिंग एज वेल एज सेंटेंस एंड वर्ड मीनिंग। थैंक्स।